Hi guys. So today we'll see the ports. So we'll just randomly select the topics and revise them. And today we'll see the ports in India and the inland waterways and some of the programs. Okay. Okay. Let's just move in with the water transport. So prior to the development of railway networks, पहले waterways are the main mode of transportation in India. सपोज जो प्रायर जो रेलवे डेवलपमेंट से पहले या रेलवे नेटवर्क से पहले चीपेस्ट इज योर वाटरवेज है ना ट्रांसफर करना थ्रू वाटर मोरओवर दे आर द मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स आप देख सकते हो बिकॉज बल्क में सामान जाता है वो उस गुड्स में जैसे कि बल्क में अगर सऊदी अरेबिया से पेट्रोल आ रहा है क्रूड ऑयल आ रहा है ठीक है तो वो इन वाटरवेज के थ्रू आ रहा है बल्क में ठीक है हैवी गुड्स हैं, ठीक है? वो भी वाटरवेज़ वगैरह आसान है क्योंकि अगर आपको देखो 1 या 2 रास्ते होते हैं व्हेन यू आर फ्रॉम यूएस टू इंडिया अगर कुछ इम्पोर्ट करना है तो यू हैव 2 वेज़ एक तो आप बाय एयर कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल चिनूक हेलीकॉप्टर ही आना है, ठीक है? तो बाय एयर आ सकता है वो ऑफ कोर्स, ठीक है? आ सकता है, ईज़ी है लाना उसको थ्रू अ ग्लोबमास्टर अ बिग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है? उसको हवा में लाया जा सकता है। लेकिन अगर 5 की डिमांड है तो वो एक-एक करके अगर आएँगे 5 फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम पे एक ही आ सकता है। तो 5 अगर एक टाइम पे एक ही आ सकता है और 5 आने हैं तो उसको जो बिग जेट है उसको 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है? एंड इट्स अ वेरी कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। तो आप क्या करेंगे यूएस के एक पोर्ट से एक बिग शिप पे पाँचों के पाँचों को रखेंगे जो आ सकते हैं पाँचों के पाँचों एक शिप पे, ठीक है? और सीधा वो आ जाएँगे इंडियन पोर्ट्स पे, ठीक है? दिस इज़ एन ईज़ी वे और बल्की गुड्स और हैवी गुड्स को ले जाने के लिए। Now, despite all these merits, water transport in India at present provides only about 1% of total transport is the water transport. So I don't know because uh, transport basically if you called कि जो in out जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है गुड्स आ रही है बेसिकली इन एंड आउट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट that will approximately 1%. I'll just check this fig fact once now. So the rough percentage, okay, the water transport is approximately less than 1. Underutilized है ये चीज़। तो इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो नॉट इनलैंड एक्सक्लूडिंग द इनलैंड वाटरवेज दिस इज वेरी मच शॉकिंग टू नो ना कि 1% भी वाटर कर रहा है ट्रांसपोर्ट लेस देन 1% अगेन क्योंकि हमारी लेंथ ऑफ ओके वो मतलब इट्स वेरी लेस यार okay let's just move in ports so there are majorly 13 major ports so those are 200 which are minor ports so 13 major and other are minor ports not only play a crucial role in facilitating international trade they also act as the fulcrums of economic activity of course
and development in their surrounding areas. Now, India has about 7,517 kilometers of main coastline, which is spread over the 13 states and union territories, and studded with the 13 major ports and 200 non-major ports with minor ports, minor to intermediate. Of the non-major ports, around 60 are handling traffic, तो हम नॉन-मेजर पोर्ट जो 200 हैं उसमें से जो 60 हैं वो हैंडल करते हैं ट्रैफिक को सर. The major ports are under the jurisdiction of central government, while the minor and intermediate ports are managed by respective state governments. The number of cargo vessels handled at major airport keep cargo vessels around 600 of 16,500 per annum. ठीक है, इतनी cargo vessels. Now, the total traffic carried out by the major and minor ports during 2005 to 6 was estimated around of 570 million tons. 12 major ports, 12 major ports जो हैं carry around 75% of total traffic, with Visakhapatnam as the top traffic handler. So you can see the Visakhapatnam in terms of traffic just, ठीक है, top traffic handler, ठीक है, in each of the last 6 years consecutive. Now we'll see who is right now. Okay, Cochin Port. Okay, let us just go with that. Port is highest traffic in India. Mumbai, Maharashtra. Top traffic handler. So, yes. Top traffic handler port. So it's a Mumbai port. It's a top traffic handler. Mumbai port again. Let us just see this. Cargo handling capacity of ports. This is handling capacity now. So this is Paradeep जो उड़ीसा वाला है 1259 इसकी है. Okay, Deen Dayal is 267. I don't know really. Port Mumbai port at the top. Cargo handling Paradeep Odisha. Cochin port, Deen Dayal port, cargo handling. Let us just not go to the fact because it is not cleared. हम लोग फिर देखेंगे facts. Okay. मेजर सी पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे. मेजर सी पोर्ट्स अब देखेंगे हम. चेन्नई, कोचिन, एन्नौर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कांडला, कोलकाता, हल्दिया पोर्ट, मोरमुगांव, मुंबई, न्यू मैंगलोर, पारादीप एंड न्यू तुतीकोरिन, विशाखापट्टनम, ठीक है. साइलेंट जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मेजर पोर्ट्स देखेंगे हम. चेन्नई, सबसे पहला पोर्ट चेन्नई देखेंगे. सिचुएटेड अलोंग द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. सो चेन्नई आपको मिलेगा नॉर्थन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ coast of Tamil Nadu. It is an artificial seaport, very much important. It is an artificial, not natural harbor. It's a artificial. Okay. It spreads over in this area. Average depth 16 meters. The harbor has an entry from north. It is not important. It can accommodate 22 vessels. The main export from Chennai port is the food grains, iron, mica, oil, cake, ठीक है, और शुगर, टर्मरिक, टिम्बर, टोबैको जो भी है, ठीक है. Now, okay. Now coming to this, this is your Chennai port. Okay.
सेवन्थ। ओके, दिस इज योर चेन्नई एंड नॉर्थ दोनों साथ साथ में, तो दिस इज योर चेन्नई पोर्ट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ चेन्नई। ओके, नॉर्दर्न ईस्टर्न, ओके कॉपी। ये जो मेटल्स पेट्रोलियम है यहाँ से जाता है ना। एन्नौर पोर्ट की बात करेंगे, 20 किलोमीटर नॉर्थ ऊपर की तरफ है ये, नॉर्थ में चेन्नई पोर्ट। Ennore is a natural harbor. It was developed to ease the pressure of चेन्नई। चेन्नई पोर्ट पे जो प्रेशर था, क्योंकि आप पोर्ट्स अगर देखें तो एक विशाखापट्टनम यहाँ होना चाहिए, एक पारादीप पोर्ट यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इस एरिया की बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, इस एरिया पे यहाँ पे एक ही पोर्ट था, ठीक है। तो इस पोर्ट का जो त्रिकोरिन है विच इज आई गेस हेयर, तो अगर आप देखोगे तो इस एरिया कोस्ट लाइन यहाँ तक, ये कोस्ट लाइन सारी की सारी चेन्नई पोर्ट संभाल रहा था, तो उसको कवर अप करने के लिए दे जस्ट मेड द एन्नोर पोर्ट, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, इट्स अ नेचुरल हार्बर, ठीक है। सो इट्स अ नेचुरल नॉट आर्टिफिशियल, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इट वाज डेवलप्ड टू ईज द प्रेशर ऑन द चेन्नई सी पोर्ट। जो भी चेन्नई पे वो था हमने देख लिया। मशीनरी, माइका, राइस, शुगर द प्रिंसिपल इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स देखो अब यहाँ पे क्या इम्पोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट तो हमने देख लिया, मशीनरी जा रही है, माइका, राइस, शुगर। एक्सपोर्ट्स आर सीमेंट, कॉटन। सॉरी, इम्पोर्ट क्या किया जा रहा है, सीमेंट इम्पोर्ट, कॉटन इम्पोर्ट। कॉटन वाई, बिकॉज हाई क्वालिटी कॉटन नहीं मिल रहा। कुछ जो प्लेसेस हैं हाई क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूस करने के, वो पाकिस्तान के पास चले गए हैं, दैट्स वाई हमें हाई क्वालिटी कॉटन बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। एडिबल ऑयल्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स। Let us move with the next port, Jawaharlal Nehru, Nahova Shiva. Situated about 14 kilometers to the south of Mumbai. So you can see Mumbai Jawaharlal Nehru Port. This seaport is developed to ease the pressure. Okay, this is not the port now. एक मुंबई पोर्ट होगा, एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होगा, दोनों अलग अलग हैं जैसे। मुंबई टू वन, कांडला वन पे होगा, मुंबई दो पे है, अनदर मेंशन ही नहीं है। ओके, it was inaugurated in 1989. World class port equipment जो है, modern facility है। The seaport is connected by 4-lane highway with the hinterland. What is hinterland? I just forgot that, I guess. Okay, it is okay. Sorry. Okay, what I'm talking about is the hinterland. So hinterland से connected, hinterland is nothing basically जहाँ से पोर्ट को सप्लाईज मिलती हैं, ठीक है। मतलब सिटी के साथ ही है, मतलब बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पोर्ट है तो ये साथ में सिटी है, इसको बोल दिया हमने हिंटरलैंड, ठीक है ना। इंडियाज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, लोकेटेड एट द एलिफेंटा आइलैंड। तो इट हैंडल्स वेसल हैविंग ड्राफ्ट अप टू 12.15 मीटर्स, 5 मीटर। कांडला पोर्ट पे आ जाते हैं, लोकेटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। दिस इज ऑफ कोर्स, है ना, गल्फ ऑफ कच्छ। Kandla Seaport was developed after independence to take up the place of Karachi when it went to Pakistan। जो कराची पोर्ट था गवादर, वो चला गया पाकिस्तान को, उसके बाद कांडला की ज़रूरत पड़ गई। It is a tidal harbour in the Kandla Creek, which with an average depth of 10 meters, lower than of course the first one. Now, Chennai one. The port has a vast hinterland in the states of गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। देखो पंजाब, हिमाचल, देखो अब अगर देखोगे ना, तो हम अब मुंबई वाले की बात कर रहे थे, तो मुंबई के लिए अगर आप देखो, मुंबई को मैं अगर मान के चलूँ तो मुंबई सिटी कनेक्ट है। लेकिन अगर मुझे हिमाचल से कोई सामान सिटीज कनेक्शन है, देखो सिटी कनेक्शन बेसिकली अगर आपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखा हो, बेसिकली सिटीज कनेक्शन जो है वो कितना है यहाँ से। देखो गुजरात का तो है ही सिटी कनेक्शन, राजस्थान का भी होगा, सिटी से बीच जाता हुआ रोडवेज या फिर रेलवेज, यहाँ और हिमाचल तक। ओके, सो दैट इज अ वास्ट हिंटरलैंड।
दीज आर द स्टेट्स, यहाँ से जो इम्पोर्ट्स हैं वो बेसिकली पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, phosphate, sulfur, while the export bones, cotton, फूड ग्रेन्स, नेफ्था, सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, सॉल्ट तो होना ही था गुजरात के साथ आकर। कोची, situated along the coast of Kerala, Kochi is a natural seaport. It is also very important कि जो कोची is a natural seaport. Okay, largest shipyard in the country. The indigenous aircraft carrier of Indian Navy is also presently under construction in the shipyard. तो जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी का सो वो वहीं था जब बन रहा था। इट रिमेन्स ओपन फॉर cargo traffic throughout the year, being situated close to the Swiss-Colombo route. It has a great commercial and strategical importance. So अगर आप इसको ढंग से देखो कोची को, सो दिस इज अ कोची ना, तो स्विस कोलंबो रूट, ये रहा आपका श्रीलंका का कोलंबो। तो इस रूट पे अगर आ रहा है ना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? कैश्यू, कर्नल, कोकोनट, कोई गुड्स, कॉपरा, ऑयल लुब्रिकेंट्स, रबर, फिश, सी फूड। Imports chemical, coal, cotton, edible oils, fertilizers. So these are the main imports exports ना। कोलकाता is the only riverine major seaport. रिवराइन मेजर सी पोर्ट मतलब कि अभी आप जानते हैं कि वहाँ से जो हुगली रिवर है वो जाती है। विल जस्ट सी इट इन लेटर कि क्या मतलब था। बेसिकली रिवराइन पोर्ट इज अ पोर्ट की जो रिवर के ही ऊपर बन गया। जैसे कि हुगली रिवर आप जानते हैं कि जाती है, तो हम अभी देखते हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस इसकी 138 साल से है ना। कोलकाता पोर्ट हैंडल्स 41.38 million tons of traffic. Okay, this is not important. The Kolkata port is situated along the Hooghly River. That's what I am saying. The river Rhine. ठीक है। तो देखो अगर आप इसका हिंटरलैंड देखोगे तो इट इज शोन कोलकाता का पोर्ट। ठीक है, बिहार को लेके मध्य प्रदेश, यूपी, फिर नीचे कनेक्टेड आएगी, फिर उत्तराखंड तक। भूटान, नेपाल भी, मतलब अगर आप देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ भूटान एंड नेपाल जो भी है वो यहीं से किया जाता है। ठीक है, कोलकाता पोर्ट से। द मेन एक्सपोर्ट ऑफ पोर्ट इंक्लूड्स द बोन मील, bunker oil, इलेक्ट्रिक गुड्स, आयरन स्टील, जूट प्रोडक्ट्स, लैक, लेदर गुड्स, मशीनरी, ये जो हुई है। ठीक है, हल्दिया पोर्ट सी पोर्ट हैज बीन डेवलप्ड alongside the coast of Bay of Bengal to accommodate modern larger शिप। तो ये बेसिकली सी पोर्ट कोस्ट लाइन पे बना है, अरेबियन सी, सॉरी अरेबियन नहीं, इंडियन ओशन। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस, बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही बना है ये, ताकि वहाँ पे लार्ज शिप्स भी पार्क या फिर जो भी आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, डॉक हो सके ना। नाउ okay, Marmagao. So situated in the entrance of Zaveri estuary in Goa, it is a leading iron ore export seaport in the country. So highest export जहाँ से होता है आयरन ओर का वो ये पोर्ट है मारबगांव। It also exports betel leaves, cashew nuts, manganese and salt. मेन इम्पोर्ट यहाँ से क्रूड ऑयल, सीमेंट, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये आपको अगर दो बार देखने को मिल रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई चीज़ यूएई से आ रही है तो वो इसी पोर्ट पे आएगी ना। अगर उसको इतना घूम के अगर वही चीज़ सेम चीज़ इसी पोर्ट पे पहुंचानी पड़ जाए तो फिर फ़ायदा क्या। वही सेम लॉजिक कि अगर कोई चीज़ यहाँ से आ रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, तो वो चीज़ मैं यहाँ उतार लूँगा ना, इस एरिया में कहीं भी उतार लो, मुझे यहाँ से यहाँ घूम के इतना घूम के जाने की ज़रूरत थोड़ी ना है। ओके, ओके, नाउ मूविंग फर्स्ट नेक्स्ट। कोलकाता डन, मोरमुगांव डन। Mumbai. Mumbai is the largest and most important seaport along the western coast of India. It is fully integrated multi-purpose port handling container, dry bulk, liquid bulk, break bulk cargoes. So it was developed by the British in 1672 in the substitute of the Suez seaport. Natural harbour है, 12 meter depth. It is a vast hinterland stretching over महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। एक्सपोर्ट अगर आप देखें यहाँ से तो कॉटन गुड्स, कॉटन यार्न, इलेक्ट्रिक गुड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, वाइल फर्टिलाइजर्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये जो है जो इम्पोर्ट में है। ठीक है, न्यू मैंगलोर situated along the coast of Karnataka. It was developed about 9 kilometers to the north of
ओल्ड पोर्ट ऑफ मैंगलोर। सो मैंगलोर देख लेते हैं सबसे पहले। न्यू मैंगलोर के ओके। सो ओनली वन इज मेंशन ना, देखो मैंगलोर मेंशन कर दिया, न्यू मैंगलोर मेंशन कर दिया, तो इसी के साथ होना चाहिए फिर ये। ठीक है, मैंगलोर पोर्ट। ओके। 1975 में इनॉग्रेट हुआ, लिंक टू द ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन विद NH 17 विद मुंबई। ब्रॉड गॉज मतलब हैवी सामान ले जाने के लिए जो ट्रेन के गॉज होते हैं। बेसिकली जो रेल की पटरी होती है, एक आती थी स्मॉल गॉज, एक आती है ब्रॉड गॉज की। तो आप ब्रॉड गॉज पे ज़्यादा सामान मतलब हैवी इक्विपमेंट्स लेके जा सकते हो, हैवी मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट, हैवी जो भी लोड होगा वो जा सकता है बहुत अच्छे से। तो मेन एक्सपोर्ट यहाँ से जाता है कैशू नट्स, कॉफी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मैंगनीज और टिम्बर। ठीक है, इम्पोर्ट्स यहाँ से LPG, आयरन और क्रूड ऑयल जो सारा अरब से आ रहा है वो, एंड फर्टिलाइजर्स, मशीनरी। ठीक है, न्यू तुतिकोरिन। The seaport has been developed about 8 kilometers to the south of Old Tuticorin. The port has an artificial deep sea harbour. So it is an artificial deep sea harbour, rich hinterland comprising the district of Kanyakumari, Ramanathapuram. It is well connected with railways and national highway. Its main exports include the cardamom spices, spices जा रहे हैं, cotton goods and hides and skins. Import देखो आप तो coal, fertilizers, hardwares. Now coming to the Paraguay port, very important, and it is the deepest harbor. It is basically deep water seaport है ये, और deepness mention नहीं की है। Okay, it is erected in 1966. The exports cotton goods. These are the things it exports and imports the petroleum products. Coming to the Visakhapatnam, it is 1933 में बना था। Best natural harbor in the country. Huge hinterland इसका। ठीक है, mostly the आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मतलब central India. Visakhapatnam port ranked first in India in the last 6 years in respect of cargo traffic. Its main imports आप देख सकते हो। ठीक है, माइनर पोर्ट या मेजर माइनर पोर्ट्स या इंटरमीडिएट पोर्ट्स मेंशन नहीं, यू कैन सी दैट, नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। कोस्टल शिपिंग देख लेते हैं। तो कोस्टल शिपिंग इज एन एनर्जी एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए कोस्टल शिपिंग एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी बचती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है एंड इकोनॉमिक है। ठीक है, it is crucial component for the development of domestic industry and trade. Coastal shipping involves movement of goods and passengers through one port to another port. ठीक है, विद इन द कंट्री कोस्टल शिपिंग हो रही है। इट्स नॉट कि आप पोर्ट से बैठे हो सीधा US उतरे, पोर्ट टू पोर्ट ट्रांसफर है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ। ठीक है, विद इन द कंट्री यू आर गोइंग। तो इंडियाज कोस्टल शिपिंग टनेज इज दिसंबर, तो दिस इज वेरी ओल्ड डेटा, विल नॉट गो दिस, 2005 का डेटा है। 470 वेसल के अराउंड था। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोस्टल शिपिंग? तो ट्रेन से ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है कुछ, ठीक है, उसको यहाँ ही जाना था कि बाय समथिंग वो नहीं जा पाया, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत था, तो उसको यहाँ फ्री मिल गया पोर्ट, तो यहाँ चले गया। अब मैं ट्रेन से उसको यहाँ लेके जाऊँ, कितना खर्चा है? मैं उसी शिप को यहाँ डॉक करके यहाँ से यहाँ कोस्ट शिपिंग कर दूँ, कोस्टल शिपिंग अपने ही टेरिटरी में वो कर रहा हूँ ना। हाँ, पॉल्यूशन फ्री ऑफ कोर्स, इतना दूर आप जा नहीं रहे हो, बस ट्रेन से तो कम ही पोल्यूशन है रोड नेटवर्क से। लेस कैपिटल इंटेंसिव ऑफ कोर्स, प्रोवाइड्स लार्ज एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरा सामान यहीं, मैंने शिप में से सामान उतार दिया या फिर नहीं उतारा, इट्स वेरी इजी, उतार दी तो कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, बट जितना ट्रेन में सामान को ट्रेन में लोड करने के लिए लगेगी कॉस्ट, उससे तो कम ही लगने वाली है। ठीक, ओके, इट इज़ द चीपेस्ट मोड, इट प्रमोट कोस्टल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज होती हैं इससे, प्रमोट टूरिज्म। आपको प्रॉब्लम है इसकी, कंजेस्टेड पोर्ट्स हैं हमारे, देख सकते हो आप ना कितनी कंजेस्टेड हैं। तो ये आपको देखने में लग रहा होगा कितना ही मतलब स्मॉल स्मॉल पोर्ट, इसमें बिग पोर्ट भी आ गया है, एक तो फिर टफ हो जाता है शिप्स के लिए। ठीक है, हिंटरलैंड से कनेक्ट नहीं है मोस्ट ऑफ देम ना।
देयर इज अ हैवी प्रेशर ऑन कंटेनर ट्रैफिक सामान आ रहा है, बहुत ट्रैफिक है उस पर, ठीक है। ओके, लेट अस जस्ट मूव फर्दर। Okay, so this is not important what we are going to study inland water transport. Okay, let us just forget that in inland water transport. Now I will just go to the biosphere reserves. Yes, sir. Okay, now ports are over. Let's go with the biosphere reserves. Biosphere reserve are the area of terrestrial and coastal ecosystem like area which is internationally recognized within the framework of UNESCO. The program of UNESCO, which is Man and Biosphere MAB program. So these are some of the area which are related to the coastal है ना, coastal ecosystem. These reserves are required to meet a minimum set of criteria होता है, अगर मतलब कोई एरिया उसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाना है तो सेट ऑफ क्राइटेरिया है, ठीक है। कंडीशन बोल लो। बिफोर बीइंग इन्वेंटेड टू एज अ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को, ठीक है। तो इसको किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए देयर इज अ सेट ऑफ कंडीशंस, मिनिमम कंडीशंस। These reserves are rich in biological and cultural diversity of course, मतलब biologically अगर आप देखो वहाँ पे and culturally बहुत कुछ होगा वहाँ पे, ठीक है। Now, the scheme of pioneering effort at pursuing the increasing difficult yet urgent task of conserving ecology system. The main objective of delineation of biosphere reserve क्या है? To conserve biosphere and cultural diversity and integrity of plants, animals, birds. तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व। इससे इट इज़ अ कोस्टल एरिया, एनिमल हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, रिप्टाइल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकती हैं एंड यूनिक फीचर्स ऑफ द pristine नेचर। To promote research on ecological conservation and other environmental aspects, ठीक है। तो रिसर्च करने के लिए फॉर एग्जांपल इस एरिया में कुछ है, a new species, so you should do is जो अभी तक नहीं मिली है, so you could discover uh, it and make it a designate that area as a biosphere reserve. To provide facilitated for education, research, and awareness, of course, at the end. So it is a reserve program. Biosphere reserve program is initiated in India in '86. तो आज तक चल रहा है। आज तक 18 साइट हैज़ बीन designated as biosphere reserve डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। तो हम नाम देख सकते हैं, तो अब आप देखोगे इसमें आपको कई नेशनल पार्क्स भी मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है वो पानी के पास हो चीज़, ठीक है। सो 1986 में आप 18 तो हो चुकी हैं बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट, ठीक है। Now, out of 18 biosphere reserves, 7 biosphere reserves have been included in the world network of biosphere. So वर्ल्ड में भी एक नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, उनमें 18 आउट ऑफ 18 7 वर इंक्लूडेड इन दैट। वन इज सुंदरवन, जो आपका देख लेते हैं साथ में, ये रहा। नेक्स्ट इज अ गल्फ ऑफ मन्नर, इज अराउंड, है तो यहाँ पे बट I'm just saying it. Kambat and Mannar is ये एरिया, ठीक है ना। ओके, थर्ड वन इज योर नीलगिरी हिल्स, तो आपका नीचे से पड़ जाएगा ये। नंदा देवी ऊपर ना, पंचमारी, आई डोंट नो, सिमलीपाल, ये मेंशन होनी चाहिए वैसे। ओके, बिकॉज नंदा देवी विल गेट हियर ओनली। सिमलीपाल ग्लेशियर आई गेस यहाँ पे हिमाचल जैसे में होना चाहिए, ठीक है। लाहौल स्पीति में है सिमलीपाल। Then you get Nanda Devi, I get Panchmarhi. So Panchmar, सिमलीपाल, जैसे सिमलीपाल की बात हो रही थी। ओके, आई एम गोइंग अबाउट दिस ना। सिमलीपाल जो है आपका ओडिशा है, ठीक है, ये रहा। नाउ कमिंग टू व्हाट, नीलगिरी हो गया। नीलगिरी से आपका यहाँ नीचे जैसे आएगा दिस एरिया,
मोटा-मोटा बता रहा हूँ, वैसे तो ज़ूम करके तो कुछ और ही बन जाएगा। नॉकरेक, नॉकरेक आई डोंट नो, मे बी आई डोंट नो, ईस्टर्न इंडिया में हो सकता है, मेंशन नहीं है यहाँ पे क्या? यार मैप तो होना चाहिए कोई ना कोई यहाँ पे। यस यस यस, दिस इज़ द नॉकरेक। ईस्ट इंडिया, नंदा देवी है आपका, कोल्ड है जी, तो चलो बायोस्फीयर रिजर्व आ गया हम ऊपर अभी। ओके, सुंदरबन हो गई, ये हो गया, नीलगिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, पंचमारी, ये आपका था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश पंचमाही मेंशन नहीं है, बट नॉर्थ क्या कहते हैं, साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में लाई करता है ये बेसिकली है जैसे। ठीक है, नॉकरेक भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। ठीक है, तो ये 7 है जो वर्ल्ड लिस्ट में है। ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में है। ओके, तो आपके जो टोटल है वो 17 हैं, उसमें से 8 हमने जो डिस्कस किए, 7 ये वर्ल्ड लिस्ट में है बायोस्फीयर रिजर्व की, और ये बाकी है। ठीक है, कमिंग टू द नीलगिरीज हमने डिस्कस कर लिया, तमिलनाडु में है। सो फाना देख सकते हो। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड डिस्कस कर लिया, नौकरेक मेघालय में है। ओके, मानस वेरी फेमस, असम, सुंदरवन वेस्ट बंगाल सभी को पता है। गल्फ ऑफ मन्नार इज एट तमिलनाडु कोस्ट, आई डोंट रिमेम्बर यार। गल्फ ऑफ खम्बत एंड इसको भी कुछ बोलते हैं फिर, एक तो खम्बत आ जाती है ना, फिर तो ये यहाँ रही ना, इसका तो कोई नहीं फिर। गल्फ ऑफ मन्नार तो यहाँ आ गई, गल्फ ऑफ खम्बत। ओके, लेट अस जस्ट फॉरगेट इट राइट नाउ। एग्जैक्ट लोकेशन ये है गल्फ ऑफ खम्बत की, विल सी इट लेटर। ग्रेट निकोबार, ऑफ कोर्स अंडमान निकोबार, सिमलीपाल उड़ीसा में देख लिया हमने, बहुत फेमस। डिब्रू साइखोवा वेरी फेमस अगेन, अरुणाचल। डिहंग दिबंग जो पास भी है डिहंग। ठीक है, पंचमार्ही अगेन, इट इज कैंगचिंग डोगरा जो भी है ये। अगस्त्य मलई, अचना कमर, अमरकंटक, कच्छ कोल्ड डेजर्ट, शेषाचलम तो पन्ना, पन्ना इज ऑल्सो वेरी फेमस। ओके, 7 आउट ऑफ 8 जो है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में है, तो आप देख सकते हो इनके नाम यहाँ डिटेल में मेंशन है। ओके, now we'll go to the mangroves, the flowers trees basically. तो मैंग्रोव्स आर लार्ज फ्लावरिंग shrubs और trees that grow in a dense thick forest में ग्रो होते हैं along muddy और silty tropical coast. They act as a green shield buffering the coastline sea against erosion. तो बेसिकली सीज के अराउंड जो भी थिक थिक ग्रो होते हैं डेंस फॉरेस्ट में ही, तो आपको साइक्लोन और सुनामी से ये बचाते हैं, ये बफर काम करते हैं। ठीक है, highly productive ecosystem which is capable of exporting energy and materials to adjacent communities. Of course, they support diverse this is what heterotrophic food chain and act as nurseries in the life cycle of some organisms. The nominate trees are Sundari, also is known as Kandala, and the Kandala pot we have in Deka. The Sundari flowers are used for dyeing of clothes. Very important. According to the latest assessment, mangroves cover the 4650 kilometers square, around the 0.14% of geographic area of country. तो 28 मैंग्रोव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई की है। ठीक है, तो केंद्रपारा, उत्तर कन्नड़ा, गोवा, गोदावरी डेल्टा, गल्फ ऑफ कच्छ, कृष्ण डेल्टा, गुंटूर, भद्रक, नॉर्थ अंडमान, तंजावुर एंड थिरुवुर। तंजावुर इज वेरी फेमस अगेन, a very important legendary city in art and culture if you have known. ठीक है, Udupi and the 24 Pranganas. So we'll do up to here and coral reefs देख लो आप, Gulf of Kutch, Gulf of Mannar. Okay, one is Gulf of Kutch and Gulf of Mannar. What I'm doing? Gulf of Kutch, गुजरात, मन्नर, मन्नर तो हमारे पास आ गई ना, कच्छ एंड खम्बत। ओके, वन इज खम्बत, वन गल्फ ऑफ खम्बत एंड गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ वाली और खम्बत वाली, दैट्स वाई दे टू हैं। ठीक है, यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे कोरल द्वीप्स हैं, यहाँ पे हैं, और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। कोरल द्वीप्स कुछ नहीं है, पानी के अंदर जो
इफ़ यू हैव सीन रंग-बिरंगे वो छोटे-छोटे से सिल्ट जो भी डिपॉज़िट हो जाते हैं और वहाँ पे छोटे-छोटे से ट्रीज़ या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो जन्म ले लेते हैं। बेसिकली एक हाइडआउट सा बन जाता है जो अ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर आपने मूवीज़ में देखा हो कि छोटे-छोटे पेड़ हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, लंबे पत्तों वाले, छोटे पत्तों वाले, ठीक है? या कलर्स वाले, बहुत कलर्स मशरूम जैसे दिखने वाले हैं। तो दैट आर कोरल रीफ्स बेसिकली, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है, उससे एक नेचुरल हैबिटेट मिल रहा है अंदर वालों जो भी ऑर्गेनिज्म फिशेस, जो फिश से लेके जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर में रह रहे हैं उनके लिए फूड प्रिपेयर हो रहा है, कुछ भी है वो एज अ फूड उसको ले रहे हैं, ऐसे मतलब बेसिकली दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना. So wetland we'll do later. So now today's topic is just the ports and the biosphere reserve. So we have also added the mangroves in it, and we'll do it later. Next topic will be random, and if you want to go कि क्या होना चाहिए, you can comment on that. Thank you.